First unit, this is for the introduction, basics, and this unit 2 also the basics like thermodynamics, na? Heat and mass transfer that you have studied in your graduations and diploma also. So, and unit 1 and unit 2 will go with the basics. Okay, and see in this psychometrics, that is the unit 3, we'll discuss about the properties of air because see, all are comfortable with English or shall I use Hindi? I'm comfortable, sir, in English. Okay. Anyone having problem, you can ask. I'll change it to English. Hindi, no problem. No. Okay, fine. So this unit 3 is for the properties of air because in this HVAC you are going to condition the air just to lower the temperature to provide the cooling effect. So to control the air properties and the air temperature like humidity, you must know the psychometrics of air. Okay, so basically in this unit 3 we'll discuss about different properties of air, and once you know the properties, you know how to control them. Okay, so in this unit 3, that is of psychometrics, properties of air. System selection means if you know which type, what are the different types of systems and equipments we have in this HVAC. Refrigerants, cooling load calculation, because first this is the first system. See, when you are going to do a project, you must know the load of the building. Okay, that how much is the tonnage requirement for the building. So how to estimate that particular tonnage requirement, that will see. Sound is not coming. Who is this? IJ. You connect your audio. Just wait 1 minute. I'll tell you. Connect with the audio. Uh, so this is cooling load. In this, we'll see how to determine the building load. Okay, means the tonnage requirement and the airflow requirement. We'll see in this unit 6. And once you know with the load of the building, then we'll see how to distribute for the building. Okay, because if you had the load requirement, then but who is not, just connect with your audio. There is an option on the left hand side of your mobile. Okay, join audio, click on that and you'll connect with the audio. Okay, okay. In this air distribution system, like the duct sizing, air terminals, diffusers, grills, how to size them. Okay, how to do the selection and how to size the ducts. Okay, that all the properties, material, gauge selection, that whatever is there in the air distribution system, that we'll see in this unit 7. Fans, because fans will blow up the air inside the building. So it is a very important topic. Fan selection, how much will be the CFM and how much will be the static pressure. That is a sequence of calculation we have, that we'll see in this unit 8. Water distribution system, that is the chill water system. Okay, and this will see different types of cycles, up to the pipe sizing, pump room, and this whole plant room will see, including this chiller. Okay, how to size them, that will see in this unit 9. Unit 10, selection of chiller, selection and designing both. AHU, FCU, FAHU, selection and designing both. Cooling tower, selection and designing both. HVAC drafting. Drafting basically how to implement your idea on AutoCAD. Okay, what are the rules, what are the standards we have to follow while drawing a ducting plan or a piping plan, that will see in this HVAC drafting. And during this whole course, some softwares that are included that you can see in this on the screen. So psychometric software, pipe sizer, duct sizer. Okay, so this was about the syllabus. And one any new Shiva Neelam. Are you comfortable with English? No, or I'll change. You can tell me, or you can write it on the chat box.
Okay, if you are not comfortable, you can write it in the chat box. So this was about the syllabus that we are going to cover. Anyone having doubt regarding the syllabus, then you can ask. Okay, and rest I'll start with a short topic and we'll find up this demo. Anyone having doubt regarding this syllabus? At least say yes or no. Unmute your mic. Feroz, Hello. Feroz, any doubt regarding the syllabus? No, sir. Okay, okay. Upendra Thakur, Yes, sir. doubt regarding the syllabus, the Hello. content we are going to cover? Okay. Okay, okay. Okay, no problem. So see, now I'll explain you a basic topic and which is a very important topic in this HV system. Basics I'm not starting. Okay, I'll just jump to the important topic that we have, which we call as the vapor compression cycle. Okay, that you have already studied in your graduations and diploma, that in the RAC subject, refrigeration air conditioning. So basically this is why I'm discussing this cycle, because this cycle is one of the most basic one. Okay, if you ask about the window AC or a split AC package, VRV, VRF, chiller, every air conditioning system follow this cycle, which we call as vapor compression refrigeration cycle. Okay, and basically this cycle comprises of four main equipments. Okay, first one is your compressor, condenser, expansion device, and the evaporator. Okay, so two things you must know about this cycle, that what is the function of each equipment, one thing, and what will be the state of the refrigerant after leaving each equipment. Okay, so this at least you must know about this cycle. Okay, because this is mostly asked in the interviews also, vapor compression cycle. Okay, mostly it is asked to draw the diagram or to explain the functions of different equipments. So at least if you are taking a demo, just learn something which is very useful. Okay, so in between, if you find a difficulty or you are not understanding, you can ask me. Okay, so in this, see, first is a compressor. Okay, see, compressor basically performs two functions. Okay, first function is to pressurize the refrigerant which is coming from evaporator, because in this cycle these equipments are connected with the copper tubes, and inside the copper tube we have the refrigerant. हेलो हेलो Yes, हेलो सर, कुछ हिंदी में समझाइए, पूरा इंग्लिश में मत समझाइए। मैं तो बोल रहा था आपको, आप मुझे बताओ, आप बोल ही नहीं रहे कुछ। मैंने आपसे पूछा था, स्पेशली पूछा था, लेकिन आपकी कोई ऑडियो नहीं आई। नहीं मैं नहीं, स्पे कुछ हिंदी में समझाइए, इंग्लिश में भी समझाइए, ज्यादा हिंदी समझाइए। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसलिए से मैं पहले कंफर्म कर रहा था, बिकॉज असल में क्या होता है एक्चुअली, कुछ स्टूडेंट्स बाहर के होते हैं, तो दैट इज व्हाई आई वाज कंफर्मिंग कि भाई इसमें कोई बाहर का तो नहीं है जो इंग्लिश बिल्कुल ही ना समझ पाए, मतलब हिंदी बात हिंदी। सही है। हाँ, तो इस वजह से मैं आई वाज जस्ट टेकिंग द कंफर्मेशन। आपने बोल दिया तो मैं हिंदी कंटिन्यू करूँगा, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ओके, तो इसके दो फंक्शन होते हैं बेसिकली। फर्स्ट फंक्शन क्या होता है कि जो रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है साइकिल में उसको प्रेशराइज करना, ठीक है, टू इंक्रीज द प्रेशर। एंड दूसरा फंक्शन क्या होता है, टू मेंटेन द फ्लो इनसाइड द साइकिल। हाउ इट मेंटेन द फ्लो, मतलब कैसे फ्लो मेंटेन करता है, बेसिकली इन दिस क्या होता है, सक्शन वाल्व होती है, डिस्चार्ज वाल्व होती है। ओके, सो सक्शन वाल्व क्या करती है, रेफ्रिजरेंट को सक करती है इस साइड से। ओके, एंड डिस्चार्ज वाल्व हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट को डिस्चार्ज करती है टू दिस साइड। ओके, सो इन दिस वे इट मेंटेन्स द फ्लो। इस दौरान इस तरह एक फ्लो मेंटेन होता है साइकिल के अंदर। ओके, तो पहला काम क्या होता है, प्रेशराइज करना रेफ्रिजरेंट को।
दूसरा काम क्या होता है, फ्लो को मेंटेन करना, ठीक है। उसके बाद जब रेफ्रिजरेंट यहाँ से निकलता है कंप्रेसर से, उसकी स्टेट क्या होती है, वेपर फॉर्म में होता है, ठीक है। अभी वेपर फॉर्म में जब कंडेंसर में जाता है और इसके अंदर हाई टेम्परेचर होता है, बिकॉज प्रेशर हाई है तो टेम्परेचर भी हाई होगा, ठीक है। तो ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट जब कंडेंसर में जाता है तो इस कंडेंसर में कॉइल्स होती हैं, ठीक है। इस तरह कॉइल होते हैं, आप देखे भी होंगे, इस तरह कॉइल्स होती हैं। तो और इस कंडेंसर के पीछे एक फैन होता है, जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ विंडो एसी। तो ये फैन जब हवा को ब्लो करता है, ओके, एंड जब ये गर्म रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जब इस कॉइल में फ्लो करता है और हवा जब कॉइल के सरफेस के कांटेक्ट में आती है, तो देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर ना, टेम्परेचर का फर्क है, हवा नॉर्मल है और ट्यूब के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वो गर्म है। तो जब वो आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर, कहाँ से कहाँ तक, रेफ्रिजरेंट से हवा के अंदर। तो हवा गर्म हो जाएगी और रेफ्रिजरेंट ठंडा हो जाएगा। जब रेफ्रिजरेंट ठंडा हो जाएगा तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, बिकॉज वेपर फॉर्म में है ना। वेपर फॉर्म, अगर आप वेपर से हीट को एक्सट्रैक्ट करोगे, हीट को रिमूव करोगे, इट विल चेंज द स्टेट, ओके। तो यहाँ से जब रेफ्रिजरेंट निकलता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, बिकॉज हीट रिजेक्ट हो गई है, एंड व्हेन द हीट रिजेक्टेड इट स्टार्ट कंडेंसिंग। कंडेंसिंग मीन वेपर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो इसका पहला फंक्शन क्या है कंडेंसर का, कि टू रिजेक्ट द हीट टू द सराउंडिंग, हीट को रिजेक्ट करना सराउंडिंग में। दूसरा फंक्शन ये है कि जो रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है इसमें जो आया है वेपर फॉर्म में, उसको लिक्विफाई करना, लिक्विड फॉर्म में करना, कंडेंस करना, टू कंडेंस द रेफ्रिजरेंट, ठीक है। ये दो फंक्शन है। इसके बाद जब ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट विच इज एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर आपका एक्सपेंशन डिवाइस में आता है, तो क्या होता है, ये एक्सपेंशन डिवाइस बेसिकली क्या है, जैसे कि आपका एक कॉपर पाइप है, इसके आगे हमने एक बारीक सा, मतलब पतले, बहुत ही माइन्यूट डायमीटर का एक वायर जोड़ दिया, ऐसे कैपिलरी को आपने जैसे देखा होगा। तो जब बहुत तेज हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे आपका रेफ्रिजरेंट आ रहा है और जब इसे टकराता है तो इट फेसेस ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन फेस कर रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर का डिफरेंस होगा, प्रेशर गिरेगा। तो ये इसका काम क्या होता है कि प्रेशर को रिड्यूस करना, ठीक है। प्रेशर क्यों रिड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर हम, क्या जरूरत है प्रेशर को रिड्यूस करने की, तो बता सकता है प्रेशर को क्यों रिड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर एक्सपेंशन Sir, वायर, when pressure drops, temperature also drops. उससे क्या होगा, Sir, we want cooling effect in evaporator, which is our indoor unit. कूलिंग इफेक्ट तो हीट एब्जॉर्ब करने से आएगा। Sorry. Basically, when pressure drops, temperature also drops, and I guess that this will convert into देखो मैं बताता हूँ, complete. अब मैं आपको बताता हूँ, आप इसको समझना चाहिए। जो प्रेशर आ रहा है हाई प्रेशर पे आ रहा है, अगर हम यहाँ एक्सपेंशन डिवाइस नहीं लगाएंगे तो ये हाई प्रेशर पे इवेपोरेटर में जाएगा, ठीक है। अच्छा, हाई प्रेशर में इवेपोरेटर में जाएगा तो इसको यहाँ पर क्या होना है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना है, बिकॉज जो कंप्रेसर है उसमें लिक्विड नहीं आ सकता, इट विल चोक हो जाएगा। तो इवेपोरेटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, बॉईल करेगा। तो अगर हम हाई प्रेशर पे इवेपोरेटर में भेज देंगे, इट कैन नॉट स्टार्ट बॉइलिंग, बिकॉज हाई प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाता है, समझ रहे मेरी बात। अगर Right. प्रेशर हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, प्रेशर लो है और बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो जाएगा। तो दैट इज वाई हम प्रेशर को रिड्यूस करते हैं जिससे कि वो जल्दी बॉईल हो जाए, समझ रहे मेरी बात। तो जल्दी बॉईल करने की वजह से हम यहाँ पर प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं। तो जब प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, इसमें आएगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, स्टार्ट बॉइलिंग, जल्दी स्टार्ट बॉइलिंग। अब प्रेशर रिड्यूस नहीं करेंगे, बहुत देर में बॉईल होगा और लिक्विड इसमें जा सकता है कंप्रेसर में, तो कंप्रेसर चौक हो जाएगा, समझ रहे मेरी बात जीशान। Yes, sir. ठीक है, तो ये इसका फंक्शन होता है प्रेशर को रिड्यूस करना। अब ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर जब इस इवेपोरेटर में आता है ना, तो बेसिकली इसमें भी कॉइल्स होती हैं और ये हिस्सा रूम की तरफ होता है,
वेपरेटर वाला। तो जब ठंडा रेफ्रिजरेंट लो टेम्परेचर पे इसमें आता है तो रूम कैसा है, गर्म, और ये कॉइल कैसी, ठंडी, ठीक है। तो यहाँ की हवा जब इसके कांटेक्ट में आएगी तो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम द एयर टू द रेफ्रिजरेंट। अब जब रेफ्रिजरेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करने पे बॉइलिंग शुरू हो जाएगी, बिकॉज प्रेशर लो है ना। तो प्रेशर लो है, जैसे हीट एब्जॉर्ब करेगा बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आगे करता जाएगा बॉइलिंग से, फिर इट विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वेपर फॉर्म। तो जब यहाँ से लास्ट में निकलेगा आपका रेफ्रिजरेंट विच इज इन द प्रीवियस इन द लिक्विड स्टेट, इट विल बी इन द वेपर फॉर्म। तो अब देखो इसका फंक्शन क्या होता है। इवेपोरेटर के दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन क्या होता है, हीट को एब्जॉर्ब करना। जब हीट को एब्जॉर्ब करे तभी ठंडक होगी है कमरे में, ठीक है। तो पहला काम है हीट को एब्जॉर्ब करना। दूसरा काम होता है इस रेफ्रिजरेंट को जो लिक्विड फॉर्म में है उसको वेपर में कन्वर्ट करना। तो ये डायरेक्टली कोरिलेटेड है, जैसे कि अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो जाहिर सी बात है भाई इसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, वेपर फॉर्म में हो जाएगा। सिमिलरली ये था, इसमें भी जब हीट को आप रिमूव करोगे तो वेपर से हीट निकाल दो तो लिक्विड में आ जाएगा अपने आप, बिकॉज वेपर कब बनता है, पानी को हीट करते जाओ, 100 के बाद हीट करते जाओगे तो वो वेपर बन जाएगा, मतलब एडिशन ऑफ हीट, कन्वर्जन ऑफ स्टेट। तो ऐसे ही अब आप हीट निकाल दोगे उसमें से तो वो वेपर से दोबारा लिक्विड में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? किसी को डाउट है इसमें तो पूछो। किसी को डाउट है इस साइकिल में? नो सर। तो इस तरह ही साइकिल कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से वेपर फॉर्म में आएगा और बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। तो ये बेसिक ओवरव्यू था इस साइकिल का, ओके। एंड दिस इज जस्ट वन टॉपिक दैट वी हैव डिस्कस्ड। इसके मैंने फंक्शन भी लिखे हुए हैं यहाँ पर, कंप्रेसर कंडेंसर का फंक्शन फॉलो करना। हेलो हेलो सर। जी जी बोलिए। हेलो सर, ये जो आपने अभी वेपर मतलब इसका जो रेफ्रिजरेशन साइकिल जो बताया है हाँ वो सभी में लागू होता है, जैसे आपका VRV में भी यही रहता है, विंडोज में भी यही रहता है, चिलर में भी यही, सभी में सेम ही रहता है इसका साइकिल? देखिए मैं बताऊं आपको, विंडो, स्प्लिट, पैकेज, VRV, डक्टेबल, फ्रॉम अप टू द चिलर विच इज ऑफ वेपर कंप्रेशन, बिकॉज चिलर टू टाइप के होते हैं, एक वेपर कंप्रेशन, वेपर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की साइकिल सिर्फ अलग होती है, बाकी आपका VRV है या इधर जो भी यूनिट है, पैकेज, स्प्लिट और ये चिलर, वाटर कूल्ड चिलर, ये सब इसी पे बेस्ड होते हैं जो मैंने साइकिल अभी आपको समझाई।